Good afternoon. Good afternoon, Gauri Nair and some unknown number. Good afternoon to you also. Yes. So I want to know, like, usually how many people will be here in this Zoom meet? Because this is my first time taking the classes for the Hyderabad region. So I'm expecting at least there will be like 10 people, at least 10 IDs will be joining now. You can give me an idea, okay? Yes, with time people are joining, that's a good thing. Good afternoon, Jamie Chitradurga. Good afternoon, Shilpa. Yes, now people are joining. Yes, I'm good to know. Good afternoon, Kritika. Good afternoon, Okay, ma'am. good afternoon. Okay, so actually we are falling late. So that is why without any further delay, guys, let's start today's class. Okay, I will introduce myself. My name is Ghazala Firdaus and I'm one of the biology faculty in JMB, or you can say in entire Avanti. Okay, so maybe एक faculty हूँ, ठीक है? चलो, great, nice, nice. Okay, guys, so before starting our today's session, there is a proper protocol in Avanti classes. That is, we first take the technical check to know if there are any internet issues or any internet queries. Just very, fastly answer me something. Am I perfectly audible to you? Is the screen visible or not? Is I'm visible or not? अच्छा, तीन क्वेश्चन है. मैं ठीक से दिख रही हूँ या नहीं? मेरी आवाज ठीक से आ रही है या नहीं? स्क्रीन ठीक से दिख रहा है या नहीं? ठीक है? So great. चलो, so it was a quick, uh, you know, uh, technical check. Great, great, great. As I can see, many people are able to see me and hear me. So then, without any further delay, let's start today's class. Okay. So let me give you the brief introduction. As per my knowledge, we are doing the chapter biotechnology principles and processes. Okay, so I hope you have completed like the basic things. मतलब एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके आप लोगों ने सब बेसिक्स तो पढ़ लिए हैं, है ना? तो बेसिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? आप लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, आप लोगों ने टूल्स के बारे में पढ़ लिया है, व्हाट आर द टूल्स दैट आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है, आप लोगों ने इस सब को क्लियर से पढ़ लिया. Now what we are going to do, we are going to understand by using which steps and what are those steps, and we are going to obtain some product. देखो बेटा, ultimately in the biotechnology we are doing all these processes to get something. Like for the diabetic persons, we want to produce the artificial insulin. तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो हम लोगों को देखना है किस किस स्टेप से होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है. ठीक है, दैट प्रोसेस यू गोइंग टू स्टडी नाउ. So before starting that section, I want to ask you some basic questions from the previous classes. Please answer it very quickly. मतलब ऐसे बहुत चुटकियों में आपको जवाब देना है. ओके, एंड क्वेश्चन तो इतना इजी है, इट्स वेरी इजी टू. ओके, चलो. The enzyme used for joining two DNA fragments is which enzyme? Ligase, Ren, DNA polymerase, helicase. Okay, I'm launching the poll for this question. Please make sure that, oh my God. Yeah, okay. You have to make sure that you have to answer the question in the poll, and I would be very happy to see if anybody is answering in the chat box. Chat box में अगर कोई जवाब देना चाहता है तो मैं देख के बहुत खुश हूँ. हालांकि जवाब गलत भी हो, but I always appreciate the effort. Mhm.
Last 30 seconds. Please think and answer. The enzyme used for joining two DNA fragments. Two DNA fragments. Okay, chalo, I'm ending the poll because I have given exactly 50 seconds. I'm sharing the results. So 67% people have chosen option C and 33% people have chosen option A. Okay, so let us discuss which is actually the answer for this question. ठीक है, क्या आंसर है? देखो बेटा, there is an enzyme, we call it as molecular glue. Okay, यहाँ पे पूछा जा रहा है टू डीएनए फ्रैगमेंट, जैसे एक डीएनए फ्रैगमेंट यहाँ पे है, एक डीएनए फ्रैगमेंट यहाँ पे है, तो इन दो फ्रैगमेंट्स को आप कैसे ज्वाइन करोगे? बाय व्हाट मींस यू आर गोइंग टू जॉइन दिस? हियर यू आर गोइंग टू जॉइन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेज. इसको आप ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज, एंड दिस लाइगेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू. मॉलिक्यूलर ग्लू. अब बोलोगे ग्लू मतलब क्या है? देखो बेटा, सिंपल भाषा में गम बोलते हैं ना, तो ग्लू, गम, स्टिकिंग मटेरियल. ओके, सो ligase is the molecular glue. मतलब if there are two DNA fragments, they don't simply go and attach by themselves. They want something for attaching together itself. Okay, that is ligase. Now, what is the function of restriction endonuclease enzyme? This is called as a REM in the short form. This is molecular scissor. है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं बेटा. क्यों? बिकॉज इट कट्स. ओके, मॉलिक्यूलर सीजर, इट कट्स द डीएनए एट अ स्पेसिफिक रीजन. अब बोलोगे अभी मैम कौन सा स्पेसिफिक रीजन? मुझे तो कुछ नहीं पता. देखो बेटा, एक डीएनए होता है ना, एक डीएनए के अंदर कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं. ओके, देयर इज अ रिकॉग्निशन साइट. दैट रिकॉग्निशन साइट हैज द पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस. कुछ पैलिंड्रोम के सीक्वेंसेस होते हैं, तो उस सीक्वेंसेस में जाके ये जो रेम है यहाँ पे कट करता है. ओके, इट दिस रेम कट्स द डीएनए ही. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बेटा, ब्लंट एंड कट, स्टिकी एंड कट. पढ़ा नहीं है आप लोगों ने? ओके, आई होप यू हैव स्टडीड दैट. दिस कम्स इन द टूल्स एंड टेक्निक्स. ओके, ब्लंट एंड कट, स्टिकी एंड कट्स. ओके, देखो अब अगर मैं यहाँ पे डीएनए लिख दो ना, तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इफ द कटिंग विल हैपन लाइक दिस. अगर कट ऐसे होता है, यहाँ पे कट मानो, यहाँ पे कट मानो, तो इसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड कट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लंट एंड कट. देन स्टिकी एंड कट क्या होता है? स्टिकी एंड कट तो देखो बेटा, इसको बोलते हैं. देखो ऐसे, यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, तो यहाँ पे कट करके यहाँ से इतना एक पार्ट डीएनए का, इतना एक पार्ट डीएनए का. दिस इज कॉल्ड अ स्टिकी एंड. एंड स्टिकी एंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द जॉइनिंग. आप लोग ने पढ़ा होगा ना, एक प्लास्मिड होता है, वी कॉल इट एज वेक्टर. सो विथ प्लास्मिड हम लोगों को क्या ऐड करना होता है? फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो यही है बेटा, प्लाज्मिड के साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आप चिपकाओगे ना, तो यहाँ पे चिपकाने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं लाइगेज. ठीक है, वो होता है लाइगेज. ओके, सो यूजुअली रेम ना स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है, एंड दिस स्टिकी एंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ, तो ये भी आंसर नहीं है. देन व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज, देखो बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. दिस इज द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन द एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अभी मैं यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस लिख देती हूँ बेटा, जैसे ए टी सी जी सी टी ए जी सी टी. चलो, ये एक सीक्वेंस हो गया. ठीक है, तो अभी ये डीएनए सीक्वेंस होता है एक. सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड. यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है. ठीक है, तो अभी आप क्या करना है? इफ यू आर डूइंग द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस विच हैपेंस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आप लोगों ने पढ़ लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. वी हैव स्टडीड द रेप्लिकेशन. तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, दे कीप ऑन एडिंग. यहाँ पे छोटे सा प्राइमर होता है, समझ लो यहाँ पे प्राइमर है टी
ए, टी ए का एक प्राइमर है, ठीक है। तो इस प्राइमर में कौन आके अटैच करेगा? सो यहाँ पे कंटिन्यूअसली द न्यूक्लियोटाइड्स विल कम अटैचिंग। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, डीऑक्सी सी टी पी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी एटीपी। I hope you are familiar with this. This deoxycytidine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, deoxyadenosine triphosphate, है ना? तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसेस बॉडी में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एक करके ऐड होते जाते हैं। जब ये एक एक करके ऐड होते हैं ना, तो एक नाइट्रोजन बेसेस बनता है, एक सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ना हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे सी की जगह आ जाएगा जी, जी की जगह सी, सी की जगह जी, ए टी सी जी ए, ठीक है। ऐसे बनता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एंड दिस पॉलीमराइजेशन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड एज पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके डीएनए सीक्वेंस बना रहे हैं। बट लाइगेज मतलब व्हाट, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ डीएनए सीक्वेंस है, उसको बस हम गम लगा के चिपका रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर समझ लो। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लाइगेज, नॉट द डीएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज क्या होता है? हेलिकेज तो बहुत इजी है। Okay, helicase is an enzyme which is used for separating the two DNA strands. See, DNA is the double-stranded structure. एक स्ट्रैंड डीएनए का यहाँ पे है, एक स्ट्रैंड डीएनए का यहाँ पे है, ठीक है। तो स्पाइरल थे, हम लोगों ने स्पाइरल से उसको लीनियर में कर लिया, कि इट वाज स्पाइरल, राइट हैंडेड स्पाइरल होता है, हम लोगों ने उसको लैडर शेप में कर लिया। जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द two strands, DNA strands. We are breaking those hydrogen bonds. So those hydrogen bonds are broken by the helicase enzyme. So this is also not the option. A is the answer for this question. Okay, am I clear to you? आपको समझ आ रहा है ना बेटा? देखो, सिर्फ कौन सा जवाब है देखना हमारा काम नहीं है, ये क्यों मेरा जवाब नहीं है वो भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज REN is the molecular scissor. Do you know DNA polymerase is the enzyme which helps in the polymerization process? And DNA polymerase में भी टाइप है बेटा। यूजुअली DNA polymerase 3 जो है वो polymerization में हेल्प करता है। DNA polymerase 1 helps in the proof reading. ओके, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब नॉर्मल जो अब ये जो बेस पेयरिंग होती है ना, मतलब टी और ए के बीच में 2 बॉन्ड हो जाते हैं, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, ये ठीक से बन रहे हैं या नहीं, तो इसका जो प्रूफ रीडिंग होता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं हमारे बॉडी में। हेलिकेज हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। लाइगेज इज द मॉलिक्यूलर ग्रुप, ठीक है ना। There is another question. Which of the following palindromic bases sequence in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction enzyme? Okay, so there are options, you have to answer the question. First, to look at the question and then I will launch the poll. Very easy question. If you remember about the restriction endonuclease enzyme, which comes under tools. ओके, रेन जो है ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये टूल है डीएनए को कट करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे कट करेगा, ब्लंट एंड होगा या स्टिकी एंड कट होगा, आप मुझे बताओ, और कहाँ पे होगा, कौन से डीएनए सीक्वेंस में होगा, ठीक है। आई एम लॉन्चिंग द पोल नाउ। ओके, प्लीज आंसर योर क्वेश्चन इन द पोल। Okay, last 30 seconds. Please think and then answer. Okay, first, let me ask you something. Are you comfortable if I speak in Hindi in between? If I use Hindi in between, because you are from Hyderabad region, so I thought it won't be a problem for you guys. Okay, your time is done. Last 5 seconds.
अब सही जवाब आ रहे हैं, देखो लार्ज मूवमेंट में सही जवाब आ रहे हैं। चलो लेट मी एंड द पोल। ग्रेट। So among like 13 people, only 16 people, sorry, 6 people have answered. Another 7 people, I don't know what they are doing. But among these people, okay, only some people are correct. तो क्या है, कौन है correct, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है? So which is the correct answer? Let us discuss that now. Okay, great. So as I have told you, restriction enzyme means nothing but REN, which is called as restriction endonuclease enzyme. So ये जो restriction endonuclease enzyme है ना बेटा, ये कट करता है डीएनए में at a specific site. ये डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट में कट करता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस. This recognition sequence is different for different REN enzymes. Like, I will give you some enzymes of REN, like ECO-R1, okay, HIND3, okay, BAM-H1, SAL-H. ठीक है, तो ये जो सारे हैं ना, SAL1, ये जो सारे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं REN के लिए. तो इसके जो स्पेसिफिक साइट्स होते हैं ना डीएनए में इसके स्पेसिफिक साइट्स होते हैं, तो वहां पे कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं ना. So these recognition sequences are palindromes. These recognition sequences are palindromes. So what actually is a palindrome? Palindrome क्या है? I hope you have studied that in the last class. Palindrome is very easy and simple. देखो बेटा, लेफ्ट साइड से जो लेटर्स आ रहे हैं ना, तो वो राइट साइड से भी सेम आने चाहिए. तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. लेफ्ट साइड से जो लेटर्स आ रहे हैं सेम राइट साइड से आते हैं. सो मैडम, मैडम, ओके, आप बोलोगे गजाला मैडम, ओके. सो मैडम, द बीच में सेंटर में आता है MAAM. सो लेफ्ट से भी MA आ रहा है, राइट से भी MA आ रहा है. और एक हो जाता है मलयालम, मलयालम, ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर वाई, मला, MALA, फिर ALAM, ठीक है. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटर्स जो लेफ्ट से आ रहे हैं सेम लेटर्स राइट से भी आ रहे हैं, ठीक है. इनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स, ठीक है. तो यूजुअली जो रेन के रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो पैलिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है ना, तो सारे सीक्वेंस का इसका एक ही एंजाइम के सीक्वेंसेस को डिफरेंट तरीके से दिया है. वो सीक्वेंस है ECO-R, ओके. ECO-R1 का यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया है. सो विच इज द करेक्ट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो फर्स्ट आपको अगर पता भी नहीं है, समझो कि आपको ECO-R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं पता है, ठीक है. यूजुअली 6 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है बेटा. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है यूजुअली 6, ओके, 6 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है. 6 न्यूक्लियोटाइड्स. आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक्स. बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर PU में, ठीक है. तो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब 6 जो बेस पेयर्स होते हैं उसका सीक्वेंस, ठीक है. चलो अब देखो यहाँ पे CGTTCG, नो, दिस इज रॉन्ग. क्यों? लेफ्ट से जो आ रहा है राइट से तो वो नहीं आ रहा ना. लेफ्ट से जो आ रहा है वो राइट से नहीं आ रहा. दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम ना. यहाँ पे देखते हैं GATA, गाटा. यहाँ पे अटका, वो सॉरी अटका बोल के है, गाटा अटका. So this is also not the correct answer. We want a palindrome, the same which goes from the left, which comes with the right, is also same. तो यहाँ पे देखते हैं GAATTC, GAATTC, great. So we have found our answer. C is the answer for this question. So here this is a palindrome, but let us also see the D option also. CAC GATA मतलब CAC GTA, यहाँ पे देखो डिफरेंट है. So this is also wrong option. So C is the correct answer for this question. It is the palindrome based sequence and it is example, it is a recognition sequence for ECO-R1 enzyme. तो इस एंजाइम का recognition sequence है, ठीक है, क्लियर. चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. मतलब
कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, कौन से प्रोसेसेस फॉलो करके हम लोगों को डिजायर्ड प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है. So processes of recombinant DNA technology is first we are doing the isolation of genetic material. तो फर्स्ट हमको क्या करना है बेटा, वी आर isolating the genetic material. If there is a genetic material which is called as gene of interest, तो उस जीन में कोई तो एक कैरेक्टर होगा, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन उसका एक प्रोटीन बनेगा, वो हमारे लिए चाहिए. हम लोग एग्जाम्पल रख के चलते हैं इंसुलिन का, ठीक है. हम इंसुलिन का एग्जाम्पल रख के चलते हैं. So first what we have to do, first we have to isolate the genetic material. एक minute. We have to isolate the genetic material. After isolating, देखो for example हम लोगों का एक कुछ इतना बड़ा तो genetic material मिल गया. अब इतने बड़े जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन करना हमारे बस की बात नहीं है. We cannot do it very easily. Then how we are going to do it? We have to cut the DNA at specific locations. What do you mean by specific location? Because in the DNA there is a presence of recognition sequence. मैंने बोला था ना डीएनए में क्या होता है, रिकग्निशन सीक्वेंस होता है, और जब रेल कट करता है तो उस स्पेसिफिक लोकेशन में ही कट करता है ना. सॉरी, एक्चुअली माय हेल्थ इज काइंड ऑफ नॉट गुड, प्लीज बेयर विद इट. ओके, सो कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन एंड दोस लोकेशंस आर रिकग्निशन सीक्वेंसेस, ठीक है. देन सो हमने कट कर लिया. अभी जो हमारा जो कटेड जीन है, एक जीन से हम क्या करेंगे बताओ बेटा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी एंड यू हैव इनवाइटेड लाइक 10 to 20 पीपल एंड यू हैव प्रिपेयर्ड ओनली वन पर्सन का डिश. मतलब एक ही पर्सन के लिए काफी होगा इतना खाना पकाया है, तो बाकी वाले लोग कहाँ पे जाएंगे, है ना. So that is why you have to prepare the food for all 20 people and then you have to keep the backup also. It is a matter of pride. You have to keep the extra food. So you keep the backup. So here that is why we are not just, operating with just a single DNA fragment. We are operating that gene of interest by keeping it many copies. ठीक है. जैसे अभी सारा डीएनए में हम लोगों को बस इतना ही चाहिए, यही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यही हमारा फॉरेन जीन है, ठीक है. तो इस फॉरेन जीन को हम एक्सट्रैक्ट करके इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको मेनी कॉपीज में फॉर्म करेंगे. उसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. उसको हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा बनाएंगे, हजारों बनाएंगे, बहुत हजारों बनाएंगे, ठीक है. So we make the amplification by using a special process called as polymerase chain reaction, ठीक है, वो करते हैं. Then after the formation of many gene of interest, we have to insert the recombinant DNA into the host cell. अभी देखो बेटा हमारे पास एक प्लास्मिड है ना. We have a plasmid which is a vector. So we attach the plasmid with what? We attach the plasmid with the gene of interest. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा. इसको प्लास्मिड के साथ मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है, वी गेट द recombinant DNA after we adding this one. Now what we see, this is the recombinant DNA. अभी इस recombinant DNA को आपको किसके अंदर डालना है, होस्ट सेल के अंदर डालना है. तो होस्ट सेल इज यूजुअली बैक्टीरियम और वी कॉल इट एज ई कोलाई, ठीक है. तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको इंसर्ट करना है हमारे होस्ट सेल के अंदर. आफ्टर द इंसर्शन ऑफ होस्ट सेल, वी अलाउ दैट होस्ट सेल विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ठीक है. वो ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा. जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता रहेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट निकालना है ना उसमें, तो हम क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अभी लाखों की कॉपीज में बन गया है, इट हैज फॉर्म्ड इन द लैक्स टुगेदर कॉपीज. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट, सेपरेट इट, प्यूरिफाई इट एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्रोडक्ट. इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है. एक बार हम लोगों को ज्यादा अमाउंट में डीएनए बन गया तो उसका प्रोसेसिंग करके देन वी हैव टू मेक एन प्रोडक्ट कॉल्ड एज इंसुलिन.
कि प्रोडक्ट में क्या होता है, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना पड़ता है, कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स लेना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। देखो, इंसुलिन बना दिया सीधा मार्केट में, यू आर गोइंग टू सेल मीन्स दैट इज इनवैलिड, यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू डू द टेस्ट एंड ट्रायल्स, यू हैव टू डू द क्वालिटी चेक। मतलब कोई रैबिट के ऊपर या एनिमल टेस्टिंग या एनी ह्यूमन टेस्टिंग, किसी के भी ऊपर टेस्ट कर दो, बाद में यू आर ऑथराइज एंड अलाउड टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, तो ये होता है ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये सब सारा आपको करना है एक डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज आइसोलेशन। ठीक है, पहला क्या है स्टेप, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल हम बोल रहे हैं ना बेटा, ये जेनेटिक मटेरियल को हम बोल देते हैं फॉरेन डीएनए। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए। और जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि इसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये है हमारा जीन। तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, देखो बेटा, कोई भी डीएनए है तो एक सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक ओपन दैट सेल। Okay, we have to break open the cell. After break opening the cell, then we can get the genetic material. उसके बाद हमको उसका genetic material मिलेगा डीएनए। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे, how you are going to break open the cell? Because if it is a plant cell, if it is a plant cell, it will be having a cell wall, a thick rigid cell wall made up of cellulose. Okay, and then if it is a bacteria, it might have a murine or it will have a peptidoglycan. यहाँ पे एक peptidoglycan का cell wall होता है बैक्टीरिया में, which is made up of नाम and नाक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेल बायोलॉजी में था, सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा होगा, है ना। सो एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसोनिक एसिड, सॉरी ग्लूकोसामाइन एसिड, तो उसको सारा मिलके बनता है पेप्टाइड। सो अब यहाँ पे आपको क्या जानना है, यू हैव टू नो इफ यू आर यूजिंग अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब अगर कोई आप एक बैक्टीरियल सेल ले रहे हो, तो उस बैक्टीरियल सेल के लिए यू हैव टू यूज सम पर्टिकुलर एंजाइम्स टू ब्रेक ओपन इट। सो हियर यू आर गोइंग टू यूज द एंजाइम लाइसोजाइम। Lysozyme enzyme use करके you can break the bacterial cell, and then inside there is a cytoplasm. Cytoplasm में क्या होगा, different macromolecules होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई प्रोटीन होगा, कोई अमाइनो एसिड्स होंगे, है ना। तो उन सबको भी हमको एंजाइम्स डाल के ब्रेक करना है। So enzymes are used in the digesting of cell wall, cell membrane and the cytoplasm components. ठीक है, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा, वो हमको प्यूरिफाइड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, सो बैक्टीरियल सेल के लिए हम लोगों ने लाइसोजाइम ले लिया। अब चलो, अब अगर हम प्लांट सेल की बात करें ना, तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ कंपोनेंट कॉल्ड एज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलेज। वो एंजाइम क्या है, सेल्यूलेज एंजाइम। ठीक है, तो अभी similarly if you are taking the fungal cell, the fungal cell has an exoskeleton of chitin। ठीक है, फंगल का जो सेल है ना बेटा, फंगल सेल और हाइफल सेल, हाइफे सेल, उसके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ chitin। To break open the chitin, you have to use an enzyme called as chitinase। Okay, you have to use the enzyme called as chitinase। So along with these, okay, इनसे क्या होगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक करने के बाद हमको डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करना है। फॉर दैट वी हैव टू ट्रीट विद आइदर प्रोटीएज। ओके, सो प्रोटीएज इज द एंजाइम यूज्ड टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लियस। ओके, राइबोन्यूक्लियस में हम लोग क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, आरएनए, राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, फिर हम लोग यूज कर रहे हैं लाइपेज। लाइपेज इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द लिपिड कंपोनेंट्स। तो इसी तरह वी डिसॉल्व एवरीथिंग। ओके, सिमिलरली वी डिसॉल्व all the macromolecules, dissolve all biomolecules except what we are extracting. Write in the chat box, except DNA,
except DNA. We are extracting DNA. That is why we want to dissolve everything except DNA. Now, we have the DNA left, but it is not in the purified form. तो हमको इसको प्यूरिफाई करके आइसोलेट करना है. हाउ वी आर गोइंग टू प्यूरिफाई एंड आइसोलेट इट? For the purification process, we have a different and a special process. We call it as spooling. Okay, spooling is the special process which is used for the extraction of purified DNA. So spooling is nothing but it is a treatment. Okay, so it is a treatment with chilled ethanol. कि चिल्ड एथेनॉल का मतलब क्या होता है बेटा? कोल्ड एथेनॉल. मतलब बहुत हम कोल्ड एथेनॉल ले रहे हैं यहाँ पे, चिल्ड ethanol, and this chilled ethanol is used to collect the purified DNA. To collect the purified DNA. To collect the purified DNA. आप अब पूछोगे मैम आपने इतना तो बोल दिया, मतलब प्रैक्टिकली भी तो बताओ क्या होता है. सो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस बेटा, यू टेक द मोर्टर एंड पेसल. जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, आयुर्वेदिक लोग जैसे जड़ी बूटी बनाते हैं खट 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 करके, तो सिमिलरली वी हैव टेकन द मोर्टर एंड पेसल. वी आर टेकिंग द लीव्स. ठीक है, प्लांट लीव्स का मैं एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्लांट का एक्सट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, so plant leaves को हम लोगों ने ले लिया. We have make it a kind of a paste. After taking the paste, we are introducing all these enzymes. क्यों? cells जब separate हो जाएंगे, paste बनता है ना, तब cells will break down. तो separate हो जाएंगे, मतलब complex cellular structure से simple cellular structure में आ जाते हैं. ठीक है, तो cells में जो होगा वो छोटे छोटे parts में break होंगे. Then we use the enzymes to dissolve the biomolecules except DNA. अगर बताओ हम लोगों ने डीऑक्सी न्यूक्लियस, ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस अगर हम डाल देंगे ना तो डीएनए भी डिसॉल्व हो जाएगा. हम लोगों को वो नहीं डालना है. ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस हम लोगों को नहीं डालना है. ओके, सो आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग. तो स्पूलिंग क्या होता है बेटा? एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता है. लेट मी चेंज द कलर हियर. ओके, यू हैव टू टेक अ सिंपल टेस्ट ट्यूब. सिंपल टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पूरा सोल्यूशन डाल लेना है. ठीक है, देयर इज अ एंटायर सोल्यूशन हियर. सो इसमें आपको कैसे पता चलेगा डीएनए कहाँ है? देखो, डिसॉल्व पार्टिकल्स के रेसिड्यूज भी वहीं पे होंगे, डीएनए भी वहीं पे है. तो आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म करना है, दैट इज कूलिंग. व्हेन यू ऐड द चिल्ड एथेनॉल टू दिस, व्हाट हैपन? द डीएनए, प्यूरिफाइड डीएनए विल स्टार्ट टू फ्लोट ऑन द सरफेस. ठीक है, जब हम एथेनॉल डालोगे तो हमारा डीएनए ऊपर आएगा और सरफेस पे फ्लोट करेगा. देन व्हाट यू कैन डू विद द इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पूल. ओके, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वी कॉल इट अ स्पूल. उस स्पूल के हेल्प से आप क्या करोगे, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में होता है. ठीक है, ऐसा. सो इसके हेल्प से, दिस स्पूल के हेल्प से आप करोगे द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पूलिंग. वो कुछ ऐसा होगा बेटा, जैसे सांबर लेते हैं ना, पता है, कुछ सांबर या कुछ सालन लेने का चम्मच ऐसे, या फिर डोसा डालते हैं वैसा चम्मच. ठीक है, तो स्पूल होता है, उससे आप लोगों ने निकाल लिया. ठीक है, उससे आप लोगों ने क्या किया, सारा जो डीएनए का एक्सट्रैक्ट हुआ जो प्रोटीन है उसको रिमूव कर लिया. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमूव और आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल. Okay, so now if you remove this, that is our DNA. That is our DNA. Okay, so this is the isolation. Now, यहाँ पे if you look here, there is a picture shown. In this picture, you can tell me clearly. You are adding the chilled ethanol. ये जो हम लोग डब्बी में क्या डाल रहे हैं बेटा? Chilled. Okay, chilled ethanol we are providing. So here what happens? The chilled alcohol will help in the separation of purified DNA, and all the DNA will come and settle at the surface. ठीक है, ये जो सारा आके surface में settle होगा. तो इसको आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्पूल की हेल्प से you are going to remove it. देखो ये real picture है. What you are seeing here, it is a real picture of removal of DNA. ठीक है, ये सारा सोल्यूशन है जो हमको चाहिए नहीं. यहाँ पे डीएनए फ्लोट कर रहा था, अब इसको अपने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक स्पूल की हेल्प से. ये आपका डीएनए है, दिस इज योर डीएनए. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दूसरे टेस्ट ट्यूब में, दिस इज आल्सो डीएनए. सो लाइक दिस वी आर रिमूविंग द डीएनए विद द हेल्प ऑफ स्पूल.
ठीक है, तो ये हो गया स्पूलिंग टेक्निक. ओके, चलो. Now, so which is the second step that you do is the cutting of DNA at specific locations. Okay, so cutting will do how, by which enzyme? So cutting will be done by the enzyme, we call it as restriction enzyme or restriction एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है, तो इस एंजाइम को काटने के लिए मैंने बोला था कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं. सो दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. कैन यू सी हियर द सेम एग्जांपल व्हिच आई टुक इन योर क्वेश्चन. नो, मैंने आपको क्वेश्चन में लिया था ना रिकॉग्निशन सीक्वेंस. सेम सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, GATTC फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, तो अब इन दो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस में क्या होगा, कट पड़ेगी. You should remember in the DNA there are more than one recognition sequence for a particular enzyme. मतलब एक एंजाइम के लिए एक से ज्यादा रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए. ठीक है, जैसे यहीं पे देख, लुक एट दिस डीएनए. ठीक है, एक यहाँ पे सीक्वेंस है, एक यहाँ पे सीक्वेंस है. नाउ वेयर एक्चुअली दिस एंजाइम विल कट, ये सीक्वेंस में आके कट करना होता है. सो हियर यू कैन सी इट इज कटिंग इन बिटवीन द GA, यहाँ पे भी AG. सो ऐसे कट करेगा. सो दिस इज अ विच टाइप ऑफ कट, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड कट. विच टाइप ऑफ कट इज दिस, ब्लंट एंड कट और स्टिकी एंड कट? प्लीज आंसर. Not getting the responses from the children. Sticky and cut. ठीक है, ये होता है स्टिकी एंड कट. मैंने बोला ना बेटा, ब्लंट एंड मतलब क्या होता है, देखो ऐसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट अगर कट होगा ना तो वो ब्लंट एंड कट होता है. इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड कट. ओके, चलो. So here you can see we have got the separate DNA fragment. So this is how we are doing the cutting process. So the cutting of DNA is done with the help of REN enzyme. ठीक है. Now, after the restriction, endonuclease enzyme, which cuts the DNA at the recognition sequence, forming the sticky ends. ठीक है, ये सब होने के बाद हम लोगों को क्या मिला, we got many small fragments. ठीक है, many DNA के small fragments, many DNA small fragments. We got the many DNA small fragments. तो इन फ्रैगमेंट्स को हमको सेपरेट करना है. देखो बेटा, इसमें सारे फ्रैगमेंट्स है, वांटेड एंड अनवांटेड. वी वांट द वन सिंगल फ्रैगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसको कैसे आइसोलेट करोगे? फॉर द आइसोलेशन ऑफ दैट प्रोसेस वी हैव अ प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो separating of gene of interest by gel electrophoresis. Okay, gel electrophoresis. तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है मैम? देखो बेटा, अभी आपने क्या किया, डीएनए को कट कर लिया. यू हैव द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इन अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास. तो अब आप क्या करोगे, एक सिस्टम लोगे. यू विल क्रिएट अ सिस्टम हियर. ठीक है, तो इस सिस्टम में आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, एक प्लेट बनाओ. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अगारोस जेल प्लेट और अगारोस जेल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन. कि इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. ठीक है, ऐसे यहाँ पे मेम्ब्रेन है सिस्टम. ठीक है, सो हियर व्हाट हैपन, दिस इज नथिंग बट अगारोस जेल. मतलब अगारोस जेल का मतलब क्या होता है बेटा? यू हैव हर्ड द नेम अगार अगार. अगार अगार इज द मटेरियल व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड बाय एन algae और algae called as jellyrium. ठीक है, आपने चाइना ग्रास खाया होगा ना, स्वीट स्वीट का नाम है चाइना ग्रास. एक्चुअली दैट इज मेड फ्रॉम द अगार अगार एंड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम्स. ओके, अपने माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में और द बायोटेक्नोलॉजी के लैब्स में यूज होता है बेटा. दैट इज अ सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम. ओके, उसको हीट करके हम लोग पोर करते हैं. When it comes to the room temperature, it solidifies just like your jelly formation, jams and jellies. वो भी बनता है अगार. ठीक है, तो यहाँ पे एक अगारोस जेल को हमने फॉर्म कर दिया एंड वी हैव क्रिएटेड सम वेल्स मतलब छोटे छोटे पिट बना लिए. पिट्स, वी हैव क्रिएटेड द पिट्स. Now what we are going to do, we are going to add that cutted fragment solution.
जो हमने फ्रैगमेंट्स को कट कर लिया था ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नाउ दैट डीएनए सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन दिस किट्स। तो अब क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है विच हेल्प्स इन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस सिस्टम को हमें कनेक्ट करना है एक कोई बैटरी के साथ, ठीक है, एक कोई हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या कोई भी ऐसी बैटरी को, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, वी आर कनेक्टिंग दिस टू अ बैटरी and there is a plug. Okay, there is a plug for switching on and off. Okay, so plug for switching on and off, and this again connects here. Now, so this we are doing what? We are allowing the system to run under electric power or electricity. Okay, now what happens when you turn the switch on? Okay, when you turn that plug or switch on, जब आप इस plug को on करोगे, then what happens? The electricity will flow, है ना? So the electricity will flow. Consider this is an anode side and this is a cathode side. ठीक है, ये कैथोड साइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, our DNA is negatively charged. For your kind information, you have studied this in your previous, chapters, molecular basis of inheritance. DNA is the negatively charged, whereas histone protein is a positively charged. That is why we have seen the nucleosome model. है ना, सब याद आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे जो डीएनए है ये यूजुअली होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है। तो यहाँ पे व्हाट हैपन, सो दैट नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल मूव टू द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ पे एनोड लिया है, यहाँ पे कैथोड लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर डीएनए फ्रैगमेंट्स, दे विल मूव टू द ऑपोजिट साइड, यहाँ पे यहाँ से मूव करेंगे, एंड दे विल मूव बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप्स, ठीक है, based on their sizes and shapes. So you can ask me, ma'am, how is that possible? देखो बेटा, larger DNA fragments cannot run fast, ठीक है। देखो, जो कोई भी बंदा अगर मोटा है तो वो जल्दी भाग के नहीं जाएगा, और जो पर्सन एकदम लीन है या फिर he is a very slim can run very quickly, right? So here what's happening, DNA है and this DNA is running from the negative side to the positive side, so that we have separated the DNA. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो यहाँ पे ऊपर होते हैं ना, जो ऊपर वेल की तरफ, those wells have the larger DNA strands compared to these the smaller. These are smaller, they have less mass, less size, and they can move or migrate very fast. Okay, so DNA fragments can migrate very fast. So this is how we separate the DNA fragments by gel electrophoresis. अभी क्या हो गया? We have the agarose gel. अभी क्या है बेटा, हमारे पास एक agarose gel है, agarose gel के अंदर we have the DNA fragments. So this DNA fragments सारे हम लोगों को नहीं चाहिए ना, we don't want all the DNA fragments, we want only the specific DNA fragments. That is why we have to choose, we have to pick the gene of interest. So I will write here, not all DNA fragments are needed. Not all DNA fragments are needed. We have to pick the gene of interest. Okay, we have to pick the gene of interest. अब आप पूछोगे, मैम क्या डीएनए फ्रैगमेंट्स हमको आंखों में दिखता है? आर दोस डीएनए फ्रैगमेंट्स नेकेड टू आवर आईज? नो, until or unless if you add the stain called as ethidium bromide. Okay, which stain? If you add the ethidium bromide, so after adding the ethidium bromide stain, you can weave the DNA fragments under UV light. मतलब naked eyes में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ओके, नेकेड लाइट में तो, सॉरी, नेकेड आइज में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, हम लोग को यूवी रेस में, यूवी लाइट में देख सकते हैं, वो भी when we are passing our DNA fragments with the ethidium bromide stain. अगर ethidium bromide stain से हमने उसको ट्रीट किया है, then only we can see in the UV light. Okay,
So now when you observe the UV light and all, then you can understand, oh इसमें हमारा gene of interest कौन सा है. So then you can do what if consider this is a gene of interest, you can pick it. You can pick that agarose gel. So एक सारा entire agarose gel को you can extract it. क्योंकि after all it's a gel, right? It's a small gel material. You can extract it entire gel. So this extraction of the DNA or the gene of interest, so this process also has a different name. We call that as the illusion or illusion. Okay, that is illusion. Okay, not illusion. Illusion नहीं, ठीक है? अपना वो hypnotism में मत घुसना. Illusion. Okay, so illusion means what? This is nothing but extraction. Okay, this is what? Extraction of DNA piece. Extraction of DNA piece from agarose gel. From agarose gel. Agarose gel से हमने extract कर लिया है हमारा DNA के piece को. ठीक है? चलो ये हो गया हमारा extraction by a process called as elution. And we have used the stain called as ethylene bromide. With the stain we can weave the DNA fragments with the UV rays. ठीक है? UV rays के अंदर हम इसको देख सकते हैं. ये process हो गया. So now we are completed with the isolation, cutting of DNA, and separating the gene of interest. Now we have the only one gene of interest. But एक से काम नहीं चलेगा. We want backup. We want the multiple copies of this gene of interest. And how we are creating those multiple copies of gene of interest? For that multiplication or for that amplification of gene, we are using a special machine called as PCR. ठीक है, हम स्पेशल मशीन यूज कर रहे हैं पीसीआर. सो पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द पीसीआर. सो यहाँ पे हो क्या रहा? इफ यू कैन आस्क मी मैम व्हाट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are multiplying. Okay, so multiply the gene of interest. Like in the simple words, gene of interest अगर एक है तो इससे हम क्या कर सकते हैं? We can make the thousands of copies. एक से हम हजारों लाखों copies जितने आपको चाहिए उतने कर सकते हैं. Okay, so this is amplification, मतलब multiplication of something or increasing the quantity of something. ठीक है, चलो. Now, how exactly this polymerase chain reaction happens now? See, for this polymerase chain reaction, we want some raw materials. इस process को करने के लिए हमको कुछ raw materials चाहिए. वो क्या है? देखो बेटा, पहले तो polymerase, the name only suggests we want some enzymes, and the first enzyme which we are using here is polymerase enzyme. As we want the DNA, we will take the DNA polymerase. I told you, right? Polymerization. Okay, so DNA polymerase we will take. But the DNA polymerase which we are using in the PCR, it is not just any DNA polymerase. मतलब कोई भी simple DNA polymerase नहीं ले रहे हैं. We are taking a very special DNA polymerase that is called as Taq polymerase. मतलब इसका नाम ही है, देखो, Taq polymerase. Okay, we are using a special enzyme. We call it as Taq polymerase, and this Taq polymerase is extracted from a heat stable or a thermostable bacteria. इसको हम extract कर रहे हैं बेटा एक thermostable bacteria से. Okay, thermostable bacteria. You can ask me, ma'am, what is the bacteria का name? Bacteria का name देखो बेटा, very simple. It is called as Thermus aquaticus. ठीक है, name बहुत easy है. Thermus aquaticus. Thermus aquaticus is the bacteria name. Okay, so ये जो bacteria का name है, this is the thermostable bacteria through which we have extracted this enzyme Taq polymerase. ठीक है, now ये हमारा एक हो गया raw material. After this raw material, we want some different enzymes or things called as template. हमको चाहिए एक template. Okay, we want a template. You can ask me what is template. देखो बेटा, if you remember the process of replication, it is very easy to understand. Okay, एक template चाहिए होता है. एक
प्राइमर चाहिए होता है हमको, वी वांट अ प्राइमर एंड वी वांट न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, वी वांट न्यूक्लियोटाइड्स. सो इतना सब मिलके हम जो है वो प्रोसेस बनाते हैं. You can ask me, ma'am, what is primer and everything. I will explain it. Okay, I will explain it now. So you need not to worry. So these are the raw materials. ठीक है. So simply मैं अगर बोलूँ आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नथिंग बट द पैरेंटल स्ट्रैंड. मतलब एक हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, उसको सेपरेट करके हम बहुत बना रहे हैं. तो जो टेम्पलेट हम बोलते हैं ना, ये होता है पेरेंट स्ट्रैंड. देखो बेटा, सिंपली आपको एक रेप्लिकेशन प्रोसेस ही करना है, आपको स्पेशल नहीं करना है, रेप्लिकेशन करना है. बट वी आर डूइंग द आर्टिफिशियल रेप्लिकेशन इन द लैब कंडीशन. हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, लैब कंडीशन में. पेरेंट स्टैंड ले लिया. प्राइमर तो होता ही है, इट इज ए स्टार्टर. ठीक है, ये होता है एक स्टार्टर. एंड दिस इज यूजुअली द सिंगल स्टैंडर्ड. ये यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है. ओके, यूजुअली आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं उसको विथ यूजिंग सम सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब 3 से 4 न्यूक्लियोटाइड्स को लेके हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमर बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स हम बेटा ले रहे हैं यहाँ पे, देखो, डीऑक्सी एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देन डीऑक्सी जीटीपी, एडिनोसिन ग्वानोफॉस्फेट. तो ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं. ओके, जीटीपी, देन D, C, T, P, then D, T, T, P. ये सारे क्या है? These are the nucleotides. See, if you don't have the basic knowledge about biomolecules, मतलब बायो मॉलिक्यूल्स की चैप्टर में आपको अगर जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक बिल्कुल हट गया है दिमाग में, तो बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा. ठीक है. So that is why you have to very make sure biomolecules भी पढ़ना है. And then molecular basis of inheritance, which was there in the last sem, you don't have to forget that also. उसको भी याद रखना है. उसको याद रखते रखते हम ये process समझेंगे. Okay. So usually in this process of PCR, there are 3 steps. Okay, 3 स्टेप हैं इस PCR के टेक्निक में. एक हो जाता है डीनेचुरेशन, एक अनीलिंग बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सटेंशन. Okay, denaturation, annealing, and extension. So now, what actually is a denaturation? Look at it. Denaturation means what? Breaking of something. Okay, here I will write. Here we are breaking of something. तो आपने सुना होगा ना, denaturation of protein. Okay, so protein क्या है बेटा? So protein is a biomolecule. So denaturation or breaking of something. तो यूजुअली हम उसको प्रोटीन को बोलते हैं. तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो, यूजुअली एक हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, ये एक ऐसा स्ट्रैंड है हमारा. तो हम इसको क्या कर रहे हैं? वी आर ब्रेक ओपनिंग इट. ठीक है, तो हम कैसे इसको ओपन कर रहे हैं? फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग वन स्ट्रैंड एंड देन वी आर सेपरेटिंग विद द डिफरेंट स्ट्रैंड. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग द डीनेचुरेशन ऑफ. ओके, सो डीनेचुरेशन मतलब क्या? वी आर सेपरेटिंग. Okay, so in simple words, if you want to know what happened here, is separation of DNA strands, separation of 2 DNA. So DNA is a double-stranded DNA, right? So we have to separate that double-stranded DNA. So separation of 2 DNA strands. But here, for separation of DNA, how we are doing it? We are doing it by maintaining the temperature at 92 डिग्री सेल्सियस. इस काम को करने के लिए हमने 92 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया है टेम्परेचर. सो इन दिस टेम्परेचर वी हैव मेंटेन द कंडीशन टू सेपरेट द डीएनए. ठीक है, अभी अब सेपरेट कैसे हुआ? देखो बेटा, सिंपल टर्म्स हैं. दो जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स थे, दे वर फ्यूज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. So here separation is happening by the breaking of hydrogen bond. क्या हो रहा है यहाँ पे? Breaking of hydrogen bond. जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो obviously दो स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, है ना? So in the denaturation process, you are separating the DNA fragments. Okay, you have maintained the temperature at 92 degree Celsius. This is the first process. Next, what is the second process? सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है बेटा? अनीलिंग. अनीलिंग इज द सेकेंड प्रोसेस. अनीलिंग मीन्स व्हाट? एडिंग. ओके, एडिंग और जॉइनिंग.
एडिंग और ज्वाइनिंग, और किसी को भी एनीलिंग बोल देते हैं। अब क्या हुआ था इन द प्रीवियस स्टेप, हमारा जो डीएनए था वो सेपरेट हो गया था, है ना, वो सेपरेट हो गया था, ऐसे इससे सेपरेट हो गया था। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्राइमर। ये जो सेपरेट हुआ है ना बेटा, इस सेपरेटेड स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इन जो स्ट्रैंड्स हैं इनको हम बोलते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो आई हैव टोल्ड यू राइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नथिंग बट द पेरेंट स्ट्रैंड। ये पेरेंट का जो डीएनए था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसके स्ट्रैंड्स को हमने सेपरेट कर लिया, इनको हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी इन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के पास हम ऐड करेंगे प्राइमर। क्या ऐड करेंगे हम लोग, प्राइमर ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्राइमर को मैं लिख लूंगी ब्लू कलर में। जैसे यहाँ पे एक मैंने छोटा प्राइमर ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक मैंने छोटा प्राइमर ऐड कर दिया। ठीक है, सो आई विल राइट द पॉइंट हियर। ओके, सो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर क्रिएटेड। ओके, टेम्पलेट strands are created, then primers are attached at 3' end. Okay, हमेशा बेटा primers attach only at 3' end. Okay, attach at only 3' end. तो यहाँ पे primers 3' end में attach कर रहे हैं, and here there is 5' end, 3' end, यहाँ पे फिर 5' end, 3' end, 5' end. Okay, so here what happened, ठीक है, तो इसके आगे वाला पार्ट ना बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, हम इसका आगे वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, अब तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपके एनसीईआरटी में है, यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व इट नाउ यू कैन डू दैट आल्सो। ओके, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन to me in the chat box. Okay, if you have any questions you can ask me. Okay, the session is open for the question. Very good, very good. There is no name for this one, but there is some number, but your answer is correct. Your answer is correct. Okay, yes, Kritika Rajesh. अच्छा, ये पर्सनल में नहीं है क्या, तो मैं थोड़ा सा पोस्ट एंड पोस्ट को डाल दें। अभी आप लोग जो भी भेजोगे ना सिर्फ मुझे दिखेगा, किसी और को नहीं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बिकॉज देर इज लेस टाइम, आई एम like right now I am going to leave the part here. We will continue this in the next. Okay, so thank you everyone, thank you so much, take care, bye bye, bye bye. Let me end the meeting.